Hello, students, and welcome to Virtual Learning Network. This is session 10 for store operations, and here we will discuss advertising and sales promotion in stores. The topics to be covered are communication effect in retail promotions, selection of promotion mix, retail promotional strategies, advertising and media selection, factors governing the selection of advertising media, types of advertising, sales promotion and personal selling, relationship marketing, and loyalty schemes. Now, first is introduction to managing inventory and display. Now, the prime objective of the retailer is achieving maximum number of sales in stores. As retailers deal with numerous products or services on day to day basis, so their prime objective is कि कैसे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स कर सकते हैं अपनी स्टोर्स में, कैसे वो इस चीज़ को अचीव करेंगे. In order to boost the sales of different products or services, different retail stores has different promotional and different advertising strategies. जैसे जैसे उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं, इसी हिसाब से उनके प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज भी अलग अलग होती हैं. They communicate to their customers on a continuous basis through their products or services, promotional literature, advertising and sales promotional activities. जैसे उनके अलग अलग जितने भी कम्युनिकेशन मिक्स होते हैं और जैसे वो कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर और कंटिन्यूस बेसिस पे अपने सप्लायर्स से या दूसरे स्टेक होल्डर्स से, ऐसे ही उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज और प्रमोशनल लिटरेचर, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं. All the communication mix that is carried out by the retailer is ordered to familiarize or promote the products or services in stores is known as retail promotion. जितनी भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी उनके कम्युनिकेशन मिक्स हैं, जो वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या फेमिलियराइज करने के लिए जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है जो वो परफॉर्म करते हैं रिटेलर्स, उसे कहते हैं रिटेल प्रमोशन. नाउ communication effect in retail promotion. It is necessary to have clear marketing objectives to clearly define an effective advertising and promotional activities. तो इसलिए अगर हमें मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं तो हम अच्छे से अपनी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं. द मार्केटिंग मिक्स शुड स्पेसिफाई अ नीड टू अचीव अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, educate, create a purchase action, improve the loyalty and change the negative perception of the customer. मार्केटिंग मिक्स जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आती है कि कैसे हम अवेयरनेस अचीव करें, अपने कस्टमर्स को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, प्रोडक्ट के साथ साथ उन्हें प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के लिए एजुकेट कराएं, परचेज एक्शंस क्रिएट करें, उनकी लॉयल्टी कैसे इम्प्रूव करें, अपना ब्रांड नेम कैसे सक्सेसफुल हो कि कस्टमर्स बार बार हमारे ही ब्रांड के चीज़ें खरीदें, प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेल करवाएं, और उनका जो नेगेटिव परसेप्शन है उसको कैसे चेंज करें. ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये आती हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर. An important part of promotional effort is building of brand and product awareness. कि कैसे हम ब्रांड और अपने प्रोडक्ट अवेयरनेस बिल्डअप कर सकते हैं, ये होती है प्रमोशनल एफर्ट की मेन पार्ट. A promotional campaign should aim at the enhancement of product knowledge and to create a favorable inclination towards the buying preference of the product or services. So, sales promotions. Sales promotion involves any paid non-personal marketing communication activity other than advertising. Sales promotion के अंदर कोई भी non-personal marketing communication activity आती है जो कि paid होती है advertising से अलग, which offers an incentive to induce a desired result from potential customers or consumers, trade intermediaries, or the sales force. Next is selection of promotion mix. Promotion is a communication process. It is broadly defined as any communication by a retailer that informs, persuades, and or reminds the target market about any aspect of that firm. प्रमोशन एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है. इसके अंदर आती है
कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो एक रिटेलर जिससे कि अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्म करता है, उन्हें परस्यूएड करता है, या फिर टारगेट मार्केट को रिमाइंड करवाता है उसकी फर्म के एस्पेक्ट्स के बारे में. प्रमोशन इज एन एक्सरसाइज in information, persuasion, and influence. And accordingly, promotion has come to mean the overall coordination of advertising, selling, publicity and public relations. तो प्रमोशन के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, कि कैसे अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को एडवर्टाइज करना है, उनकी सेलिंग, पब्लिसिटी यानी कि मार्केटिंग, और पब्लिक रिलेशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रमोशन के अंदर. Now, promotion mix. A promotion mix involves three main activities: personal selling, advertising, and sales promotion. Now, next is approaches to promotion. The objective of promotions is to catch the potential customer and pass through a series of stages that lead to purchase and product or services. तो ऑब्जेक्टिव मेन क्या होता है प्रमोशन का, कि कैसे पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें अपने प्रोडक्ट्स की तरफ, ताकि हम अपने वो हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को परचेज़ करें और हमारी फर्म को प्रॉफिट हो. इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है जो इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के बनाया गया है, दैट इज़ AIDA कॉन्सेप्ट. A इज़ टू क्रिएट अटेंशन, I इज़ इंटरेस्ट, D इज़ डिज़ायर टू मेक परचेज, एंड फाइनली लीडिंग टू एक्शन, मेक दी परचेज. तो ए होती है कि कस्टमर को कैसे अटेंशन प्रोवाइड की जाए, या कस्टमर कैसे अटेंटिव होगा हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए. आई इज़ इंटरेस्ट, कि उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप करवाना है, ये प्रमोशन का एक और अप्रोच होती है. देन डी इज़ डिज़ायर, कि उनके अंदर कैसे डिज़ायर क्रिएट होगी कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करें. एंड फाइनली ए इज़ एक्शन, कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें. These are the logical stages through which promotional methods act. Next is planning promotional strategies. Now the following are the steps involved in planning a promotional strategy. First is goals should be specified and measurable terms. Goals हमारे specific होने चाहिए, specified होनी चाहिए और measurable terms में होने चाहिए. Positive word of mouth should be recognized as an important long term goal. तो वर्ड ऑफ माउथ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिवली नहीं जाना चाहिए. सेकेंड इज़ एन ओवरऑल प्रमोशनल बजट इज सेट. एक बार हमें पता है कि हमारे स्पेसिफाइड गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बाद उसका हम बजट बनाते हैं कि हमारी मार्केटिंग या प्रमोशन में कितना बजट लगेगा. देन द प्रमोशनल मिक्स इज आउटलाइंड based on the firm's budget, the time of retailing involved, the coverage of the media and the hierarchy of effects. प्रमोशनल मिक्स में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं कि फर्म का बजट पे बेस्ड कैसे हम रिटेलिंग अपनी हमारी टाइप ऑफ रिटेलिंग क्या है, उसको में हमें क्या क्या मीडिया कवर करने हैं, और इफ़ेक्ट्स की हायरार्की कैसे डिफाइन करनी है. देन फोर्थ इज़ प्रमोशनल मिक्स इज़ इनएक्टेड. एक बार हमने पूरा प्लान डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. इंक्लूडेड आर डिसीजंस इन्वॉल्व स्पेसिफिक मीडिया, promotional timing, message content, sales force composition, particular sales promotion tools, and the responsibility for coordination. And fifth is the retailer systematically reviews and adjusts the promotional plans consistent with its preset goals. जो हमारी प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है. एक बार हमने प्लान करके उसे डिज़ाइन किया, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और बाद में फिर रिव्यू करते हैं, और अगर कोई फ्लॉज दिखते हैं हमें तो फिर उसको दोबारा से एडजस्ट करते हैं अपने प्रमोशनल प्लान को. जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं मार्केट के, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी डायनामिक होती हैं, इसलिए उस हिसाब से हमें अपने प्रमोशनल प्लान को भी एडजस्ट करना होता है. नेक्स्ट इज़ Retail promotion strategies. Retail promotion is simply the way that retailers communicate with their publics, कि कैसे वो अपने जो उनकी टारगेट मार्केट है, टारगेट कंज्यूमर्स हैं, उनसे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. दे एक्सचेंज मीनिंग्स विद देम थ्रू द मैसेजेस दे क्रिएट एंड द मीडिया दे यूज़. सो प्रमोशन एंड इवेंट्स हेल्प द स्टोर टू अचीव इट्स शॉर्ट टर्म गोल्स. जो प्रमोशंस और इवेंट्स होते हैं वो एक स्टोर को हेल्प करते हैं कि कैसे वो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करेंगे.
Promotions may be price led or occasion led, in which case special merchandise is offered by the store only for the occasion. Occasion लेट में होता है कि कैसे सीजनल जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं जो कोई भी रिटेलर ऑफर करते हैं, और प्राइस लेट जैसे कि जब सेल्स या डिस्काउंट परचेजेस होती हैं. देन people to serve and people that serve. These are two kinds of people as far as retail marketing mix is concerned. First is people to serve, that are customers, and people that serve are employees or retailer. It is customer who determines whether the retail store is selling the right product and services. People that serve the organization are the ambassadors or the face of the retail store. तो people to serve होते हैं जो ये recognize करते हैं, ये decide करते हैं कि जो retail store मार्केट में सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो ठीक है कि नहीं. और पीपल दैट सर्व यानी कि एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्बेसडर्स की तरह वर्क करते हैं. दे आर द फेस फॉर द रिटेल स्टोर. प्रेजेंटेशन इज़ द वे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर ग्रुप्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ रिटेल स्टोर. कि एक रिटेल स्टोर में कैसे हमने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट किया, अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कैसे ग्रुप किया है, कैटेगराइज किया है, और उन्हें हम कैसे डिस्प्ले करवा रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स के लिए अट्रैक्टिव हो. Such presentation should conform to the store's positioning and customer's profile. Next is advertising and media selection. The main business of any retail setup is to sell the merchandise offered in the store at a profit. मेन बिजनेस क्या होता है रिटेल स्टोर का कि कैसे वो मर्केंडाइज को ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को जिससे कि स्टोर को प्रॉफिट हो. So, every retail store needs to familiarize their stores and merchandise offered by it in a way that it attracts the customers and turns the footfalls into real purchases. तो हर रिटेल बिजनेस का क्या होता है कि वो कैसे अपने स्टोर को फेमिलराइज करे, स्टोर की जो मर्केंडाइज है उन्हें कैसे ऑफर करे कि कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव हो, एंड टर्न्स द फुटफॉल्स इनटू रियल परचेजेस. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रमोट द स्टोर इनटू पब्लिक. नाउ एडवर्टाइजिंग. The word advertising originated from a Latin word advertise, meaning to turn to. Advertise एक Latin word है जिसका मतलब होता है to turn to, and it is a non-personal communication tool which is a paid service. It is directed to mass audience. Then, according to American Marketing Association defines, advertising is an paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor. So एडवर्टाइजिंग होता है एक पेड फॉर्म होती है किसी भी नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन की और प्रमोशन की. प्रमोशन किसका कर रहे हैं? आइडियाज़ का, गुड्स का, सर्विसेज का, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर से. इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सच मीडिया एज मैगजीन, न्यूज़पेपर, space, radio, motion pictures, outdoor media, cards, catalogs, direct mail, directories and references, store signs, programmers and menus, novelties and circulars. किसी भी मीडिया के थ्रू जब हम अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रमोशन करते हैं तो वो होता है एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग मीडिया. The advertising media refers to the means through which the advertiser conveys the message to audience. Advertising media होती है कि जिसके थ्रू हम अपना रिटेल स्टोर का या अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एडवर्टाइज कर रहे हैं. जैसे कि मीडिया किसी भी टाइप की हो सकती है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, स्पेस, रेडियो, मोशन पिक्चर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. देन मीडिया सिलेक्शन. द प्रमोशन कैन बी मेड बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मीडिया. अप्रोप्रिएट मीडिया यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं. सो मीडिया सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सम ऑफ द मीडिया यूज्ड फॉर प्रमोशन आर टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, डायरेक्ट मेल, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, बिल बोर्ड्स, पोटेंशियल बुलेटिन्स और डिस्प्लेज, इलेक्ट्रिक स्पेक्यूलेटर्स एंड इंटरैक्टिव मीडिया. नेक्स्ट इज factors governing the selection of advertising media. With the number of options available, it is a complex task for retailer to go for the best advertising media. So there are many factors
to be observed by the retailer in selecting the advertising media. First is target audience. अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मीडिया सिलेक्शन को गवर्न करते हैं. पहला है उनमें से टारगेट ऑडियंस की हम किसको टारगेट कर रहे हैं, हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है और हमने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से कंज्यूमर ग्रुप के लिए डिवाइस किए हैं. टू ऑप्ट फॉर द बेस्ट मीडियम, रिटेलर हैज़ टू नो दी बेस्ट मीडियम दैट रीचेज दी टारगेट ऑडियंस. जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसको बेस्ट मीडियम कौन सा रीच करेगा. अगर हमारा प्रोडक्ट रूरल एरियाज़ के लिए है तो हम उसको स्पेस या फिर टेलीविज़न के थ्रू मार्केट नहीं करवा सकते या ई रिटेलिंग के थ्रू हम उसे मार्केट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज़ एक्सटेंट ऑफ कवरेज, कि हमें कितना एरिया कवर करना है, कितने नंबर ऑफ ऑडियंस कवर करने हैं. रिटेलर हैज़ टू कंसिडर द नंबर ऑफ ऑडियंस टू बी कवर्ड बाय द मीडियम एंड अकॉर्डिंगली गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ मीडिया. थर्ड इज़ नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, उसकी फीचर्स क्या है. बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइन द एडवर्टाइजिंग मीडिया हैज़ टू बी ऑप्टेड. Fourth is nature of the competition. The nature of the competition exerts greater influence on the selection of the media. If the competition is stiff, utmost care is needed in the selection of media and larger advertising budget is required. अगर competition बहुत ज़्यादा है, मतलब एक ही प्रोडक्ट को बेचने के लिए काफ़ी सारे रिटेलर्स हैं, तो उस केस में हमारा एडवर्टाइजिंग बजट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और मीडिया सिलेक्शन जो हम कर रहे हैं वो भी बहुत ध्यान से होनी चाहिए. देन रेप्यूटेशन ऑफ द मीडिया, जो हम मीडिया सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी रेप्यूटेशन के हिसाब से हमें चलना चाहिए. देर आर few newspapers and magazines which have international reputation with high readership. Advertisements with such magazine and newspapers are generally recognized and believed as true. Then cost incurred. Cost of the medium also matters in selecting a media. The cost should be feasible with expected results. जो हमारे results हमने expect किए हैं और जितना हमारा budget है उस हिसाब से हमें cost का ध्यान रखना चाहिए और उसी हिसाब से हमें मीडिया सेलेक्ट करना चाहिए. Seventh is time and location of buying decisions. The location of the audience and the time by which it should reach them must also be looked into. कि हमारी ऑडियंस की क्या लोकेशन है, क्या टाइम है जिस पे हम मार्केटिंग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है. दिस कंसिडरेशन ऑल्सो enables the advertiser to keep this retail outlet in proximity to the customers. नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि मेन हमारे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स क्या होते हैं एडवर्टाइज करने के. फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेटिव. एडवर्टाइजिंग सीक्स टू डेवलप इनिशियल आइडेंटिटी. इनिशियली हमें आइडेंटिटी डेवलप करनी होती है एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने रिटेल स्टोर की, तो इसलिए वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, यानी कि हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कस्टमर्स को अपने रिटेल स्टोर के बारे में. देन परसुएसिव. एडवर्टाइजमेंट्स अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज डिमांड फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए डिमांड इंक्रीज करते हैं, तो परसुएसिव होने चाहिए कि कस्टमर्स को परसुएट करें कि वो हमारे प्रोडक्ट्स खरीदें. देन रिमाइंडर. एडवर्टाइजमेंट स्ट्राइव्स टू री इन्फोर्स प्रीवियस प्रमोशन बाय कीपिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट. अगर मार्केट में बने रहना है और अपना प्रोडक्ट नेम बनाए रखना है तो उसके लिए री इन्फोर्स करना ज़रूरी है प्रीवियस प्रमोशन को दोबारा से, ताकि कस्टमर्स को याद रहे अपने ब्रांड के बारे में. नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. There are different forms of advertising. First is product advertising. This aims at product advertising. It features the promotion of merchandise that's new, exclusive, and superior in aspects of quality and design, as well as creating awareness of complete assortments or special merchandise events. प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें हम मर्केंडाइज को प्रमोट करते हैं जो कि नया है, एक्सक्लूसिव है और हर एस्पेक्ट में, जैसे कि क्वालिटी है, डिज़ाइन है, उसमें दूसरे प्रोडक्ट से सुपीरियर है. तो इसके बारे में अवेयरनेस जब हम करते हैं और अपने स्पेशल मर्केंडाइज इवेंट्स को जब हैंडल करते हैं वो होती है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट इज़ मार्कडाउन इवेंट एडवर्टाइजिंग. This is used to create some excitement about special period of lower cost offers for products. तो मार्कडाउन इवेंट एडवर्टाइजिंग होती है जब हम
अपने कुछ स्पेशल पीरियड ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफर्स, जैसे जब हमने डिस्काउंट लगाते हैं या सेल्स ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को, जो ओकेजनली होते हैं, उस केस में जब हम एडवर्टाइज करते हैं, दैट इज़ मार्क डाउन इवेंट एडवर्टाइजिंग, कि किसी स्पेशल इवेंट के लिए जब एडवर्टाइज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग. दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग फोकसेस ऑन द प्रमोशन ऑफ द स्टोर रादर दैन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड. कि हम एक इंस्टीट्यूशन की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, यानी कि अपने स्टोर को एडवर्टाइज कर रहे हैं, ना कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को. इट स्ट्रेसेस ऑन द प्रमोशन ऑफ स्टोर इमेज और स्टोर ब्रांड इन द पब्लिक, कि हम अपने स्टोर ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं. दिस इज़ अ रीसेंट ट्रेंड विच इज़ ऑब्जर्व्ड इन फोकसिंग द advertisement of retail institution shopping malls, highlighting their unique features like leisure shopping experience, ample parking facilities, etc. जैसे कि हम शॉपर स्टॉप का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उसमें वो अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट ना करके अपने ब्रांड नेम को एडवर्टाइज करते हैं. देन cooperative advertising. In this type of advertising, the manufacturers fund part of promotion by supplying leaflets or advertising materials for use of the stores. कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपने लीफलेट्स या फिर एडवर्टाइजिंग मटेरियल सप्लाई करके प्रमोट करते हैं. एज द मैन्युफैक्चरर्स आर कीन to have their products stocked and sold, so they often enter into cooperative advertising. This type of advertising may involve a combination of one or more retailers in an area as well as the manufacturer. Next is sales promotion and personal selling. Personal selling and sales promotion comprises of two effective tools in integrated marketing communication. इसमें दो mainly effective tools होते हैं. Personal selling involves a two-way communication between a seller and a proposed buyer. Two-way communication होता है, एक seller और दूसरा होता है buyer. इन दोनों के बीच में messages pass होते हैं, communication होता है, information transmit होती है. Careful cultivation of the sales force is needed for a result-oriented personal selling program. So, personal selling is a promotional method in which one party uses skills and techniques for building personal relationship with another party. पर्सनल सेलिंग एक प्रमोशनल मेथड होता है जिसमें एक पार्टी अपने स्किल्स और टेक्निक्स यूज़ करके दूसरी पार्टी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स बिल्डअप करती है. In most cases, the value for the salesperson is realized through the financial rewards of the sale, while the customer's value is realized from the benefits obtained by consuming the product. Advertising, personal selling, and public relations are included in पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग के अंदर एडवर्टाइजिंग होती है, पर्सनल सेलिंग होती है और पब्लिक रिलेशंस होते हैं. Whereas sales promotion is a mass communication technique that offers short-term incentives to encourage purchase of a product. तो सेल्स प्रमोशन देखा जाए तो वो एक मास कम्युनिकेशन टेक्निक्स है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए प्रमोट करते हैं. नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स. Sales promotion consists of promotional activities other than advertising, personal selling and publicity which stimulate purchases. Sales promotion के अंदर काफ़ी सारी activities आती हैं. Advertising, personal selling, publicity जैसी कि जिनसे हम अपने purchases को stimulate करते हैं कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें. It normally involves a direct inducement such as money, prizes, extra products, gifts, or specialized information that provides extra incentives to buy now or buy more. Then, some of the examples of sales promotion are displays, normal display of product or merchandise aimed at attracting customers and enhances an impulse purchase decision. ये डिस्प्लेज में आते हैं कि जैसे हम अपने अगर प्रोडक्ट या फिर मर्केंडाइज को नॉर्मली डिस्प्ले करवाएं. रेफरल गिफ्ट्स होते हैं कि जो हम अपने किसी भी कस्टमर को कुछ वो अगर वो परचेजेस करते हैं तो उसके साथ हम जो गिफ्ट्स दे रहे हैं. देन फैशन शोज, कूपन्स, एग्जिबिट्स, फ्री सैम्पल्स, novelty items, trade shows, demonstrations. These all are sales promotion
programs. Then next is sales promotion activities. Philip Kotler classifies sales promotional activities into three kinds of activities: consumer promotion, trade promotion, and sales force promotion. Now, first is consumer promotion. This promotional activity is aimed at consumers either to increase the use of product among the existing customers or to attract the new customers. तो कंज्यूमर प्रमोशन एक्टिविटी होती है जिसके अंदर कंज्यूमर को या तो हम इंक्रीज़ करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको, या फिर हम नए कस्टमर्स को प्रमोट अट्रैक्ट करते हैं कि वो उनको हमारे प्रोडक्ट्स अपीलिंग लगे और वो हमारे लिए नए कस्टमर्स बने, टू रिटेलिएट अगेंस्ट द competitors sales activities. So the various sales promotion methods at the consumer level are following: sampling, coupons, money fund refund offers, price of promotion, contest, sweepstakes, and games. Now first is sampling. This involves distribution of free samples, कि हम free samples अगर हम distribute करें अपने जितने भी कंज्यूमर्स हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं मार्केट को, उनके बीच में. सैम्पलिंग इज़ एन एक्सपेंसिव बट अ पावरफुल टूल. नेक्स्ट इज कूपन्स. A coupon is a certificate that entitles the consumer to a specified saving on a purchase of a specified product. कि हम कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने कस्टमर या फिर मार्केट में कि अगर कि स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को अगर परचेज करेंगे तो उस पर ये कूपन दिखा के इतना डिस्काउंट मिल सकता है या फिर इसके साथ ये आइटम फ्री मिल सकती है. तो ये भी एक पावरफुल टूल है जो मैन्युफैक्चरर्स डेवलप करते हैं ईदर डायरेक्टली बाय मेल और थ्रू दी रिटेलर्स. देन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रीमियम ऑफर्स, जैसे कि डायरेक्ट प्रीमियम, रीयूजेबल कंटेनर, फ्री इन मेल प्रीमियम एंड सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रीमियम. डायरेक्ट प्रीमियम इज ऑल्सो नोन as in on or near packages. It is included inside or outside the packet. कि हमने कोई प्रोडक्ट लिया है तो उसके साथ हम ये पैकेट दे सकते हैं. या फिर जो डायरेक्ट प्रीमियम है वो होता है जैसे स्पून फ्री विद हेल्थ ड्रिंक पैक्स, कि पहले से ही हमने डिसाइड कर रखा है कि इस प्रोडक्ट के साथ ये चीज़ फ्री मिलेगी. दैट इज़ डायरेक्ट प्रीमियम. सेकेंड इज़ रीयूजेबल कंटेनर. A reusable container is a container that has value to the consumer after the product is consumed, such as detergent powders in plastic buckets. Reusable container होते हैं कि containers होते हैं जिनकी कस्टमर के लिए वैल्यू होती है कि जब हमने एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया है उसके बाद भी हम दूसरे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं. जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर्स के साथ अगर हम प्लास्टिक बकेट्स फ्री देते हैं, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रीयूजेबल कंटेनर. Next is free in mail premium. A free in mail premium is an item that the company will mail to consumers who make a request for it, including a proof of purchase. For example, send 50 wrappers of Mahalacto and get free gifts. तो वो होता है free in mail premium. कि हम वो होता है कि जैसे हमने एक एडवर्टाइज कर दिया कि हम अगर लैक्टो के 50 रैपर्स कोई कंज्यूमर सेंड करेगा बाय पोस्ट और बाय एनीथिंग तो उसको एक फ्री गिफ्ट मिलेगा. सो दैट इज़ फ्री इन मेल प्रीमियम. नेक्स्ट इज सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रीमियम. अ सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रीमियम इज एन आइटम दैट द कंपनी विल सेल बाय मेल एट प्राइस वेल बिलो द नॉर्मल और द ओरिजिनल price to consumer who request it. For example, pre-publication offers on book for 50% discount. Then third is money refund offers. This offer is usually stated in media advertising that the manufacturers will return within a stated period the whole of the purchase price if he is not completely satisfied. Money refund offers होते हैं कि अगर एक कंज्यूमर completely satisfied नहीं होता किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से तो उसकी मनी हम रिफंड कर देंगे. This is also a sales promotion activity. Then fourth is price of promotion. This involves an offer to consumer of a certain amount of money of the regular price of a product prominently printed on the label or package. Special introductory offers of new brands can make this way. So price of promotion होता है जब हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम पे जो हम
प्राइस ऑफ देते हैं, यानी कि अब जो उसके कॉस्ट है उससे कम अगर हम कंज्यूमर को बेच रहे हैं उससे कम कॉस्ट पे, दैट इज़ प्राइस ऑफ प्रमोशन. There are three types of this kind of promotion, that are a reduced price pack, for example, rupees 5 off on the product. Second is multiple pack. For example, buy one and get second one with 30% off. और third होता है a bounded back. For example, buy three products for reduced price. Then last is contest, sweepstakes and games. Contest, sweepstakes and games have also seemed a great upsurge in popularity in recent years because they provide excitement for the product or the service being promoted. For example, Kurkure tea time recipe concept. Then second type of promotion activity is trade promotion. They are generally directed towards the dealer with a view to secure their patronage in preference of other products. So ये होती हैं डीलर्स के लिए होते हैं ज़्यादातर, ताकि हम उन दूसरे प्रोडक्ट्स की प्रेफरेंस में वो पैट्रोनेज हम सिक्योर कर सके. देयर आर ऑल्सो नंबर ऑफ ट्रेड प्रमोशनल एक्टिविटीज़. सम ऑफ देम आर बाइंग अलाउंस, बाय बैकअप, buy back allowance, free goods, merchandise allowance, cooperative advertising, dealer listed promotion. The buying allowance, if offered to the dealers to induce them to buy a new product introduced by the मैन्युफैक्चरर. सो ये होता है कि डीलर्स को हम ऑफर करते हैं ताकि वो नया प्रोडक्ट खरीदें मैन्युफैक्चरर से. दिस अलाउंस इज़ यूजुअली डिडक्टेड फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ द इन्वॉइस. हम ये जो फेस वैल्यू होती है इन्वॉइस की उसमें से डिडक्ट करते हैं, उसमें डिस्काउंट देते हैं. देन बाय बैक अलाउंस. दिस मेथड ऑफ प्रमोशन इज प्रैक्टिस टू प्रिवेंट पोस्ट डील सेल्स डिक्लाइन. Under this method, the manufacturer offers a certain amount of money for additional few purchases based on the quantity of purchase made on the first trade deal. So इस मेथड में क्या होता है, जो परचेज मैन्युफैक्चरर है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑफर करता है एडिशनल परचेजेस के लिए. जितनी भी क्वांटिटी होती है परचेजेस की जो पहले फर्स्ट डील में ली थी, उससे अगर एडिशनल परचेजेस करते हैं तो उस पर जो हमें डिस्काउंट मिलता है, किसी भी डीलर को जो डिस्काउंट मिलता है वो होता है बाय बैक allowance. Third is free goods. This is also a buying allowance but in the form of goods. ये goods की form में होता है. An offer is made of a certain amount of a product of wholesalers and retailers at no cost to them on every purchase at a stated amount of the same or another product. Then merchandise allowance. They are short term in character and given to compensate the dealers of the promotional expenses incurred by them. Merchandise allowance होता है शॉर्ट टर्म होते हैं, और ये क्या होता है कि डीलर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए दिया जाता है कि वो प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो उन्होंने इनकर किए हैं उसके साथ कॉम्पनसेट कर सकें. और इसमें आते हैं एडवर्टाइजिंग अलाउंस और डिस्प्ले अलाउंस. फिफ्थ है कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग. Under this method, the producer agrees to pay advertising allowance to the retailers for each unit of product purchased or the contract for a specified period. Cooperative advertising में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है जितना उसने एग्री किया है पे करने के लिए एडवर्टाइजिंग अलाउंस जो उसके रिटेलर्स हैं उनको, उस पर वो इसमें डिस्काउंट देता है. देन डीलर लिस्टेड प्रमोशन. Here, the advertisements or other publicity materials like calendars issued by the manufacturer also contains the name and addresses of the retailer who stock the produce or who are operating in the promotion. Now, third is sales force promotion. Personal selling is by far the most important method of sales promotion. Personal selling जो है वो sales promotion का method है. Sales force promotion is highly essential to make personal selling effective and more impressive. इसके 3 types होते हैं: bonus to sales for contest and sales meetings. Now, bonus to sales force में क्या होता है, a quota is set for a specified period. एक specified time period के लिए हमने एक quota set कर दिया. Bonus is offered on sales in excess of the quota fixed by the sales manager, कि उस कोटा में अगर हम परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें बोनस ऑफर किया जाता है. देन सेल्स फोर्स कॉन्टेस्ट. Sales force contests are announced to stimulate company salesmen to double their selling interest.
एंड एफर्ट्स ओवर अ स्टेटेड पीरियड. कि सेल्समैन जितनी ज़्यादा सेलिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा सेल करेंगे प्रोडक्ट्स को, उतना ज़्यादा उन्हें बोनस मिलेगा. दैट इज सेल्स फोर्स कॉन्टेस्ट. देन sales meeting, salesman convention and conferences etc. are those conducted for the purpose of educating, inspiring and rewarding the salesmen. New selling techniques are described and discussed in those meets. तो ये सेल्स मीटिंग्स होती हैं जो सेल्समैन के लिए कंडक्ट की जाती हैं. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड लॉयल्टी schemes. Relationship marketing was first defined as a form of marketing developed from direct response marketing campaigns, customer retention and satisfaction rather than a dominant focus on sales transaction. तो relationship marketing थी जो एक फॉर्म ऑफ मार्केटिंग थी जो हमने डेवलप की थी डायरेक्ट रिस्पॉन्स में किसके, जो मार्केटिंग कैंपेन्स है जो कस्टमर रिटेंशन और सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं, ना कि सेल्स ट्रांजैक्शंस के लिए. Relationship marketing differs from other types of marketing as it focuses on the long term relationship with the customer and extends its vision beyond mere advertising and sales promotion. Relationship marketing दूसरी टाइप की मार्केटिंग से डिफरेंट होती है क्योंकि ये कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में ज़्यादा फोकस करती है. Then many retailers realize the advantages of loyal customer as easy to serve. They act as effective marketers for store offering by word of mouth. So loyalty programs are the structures marketing effort that reward, encourage the loyal buying behavior which is indeed potential for the firm. लॉयल्टी स्कीम्स होती हैं, ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं जो एक तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मार्केटिंग एफर्ट्स की तरह हम लेते हैं, और इनमें क्या होता है कि जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही सेल हमारी प्रमोट कर सकते हैं. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए कस्टमर्स, जो लॉयल कस्टमर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनमें ना ही कोई एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा खर्च हो रहा है, ना ही कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय करनी पड़ रही है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.